Welcome to our FNO Pe Charcha. So, you see, markets had been quite volatile, and in the last few days, we have seen the markets moving up, and for the last 2-3 days, it had been consistently moving down. So, what would a FNO trader do? This was a very good time for traders who trade using breakouts, and especially option breakouts. So, for this, our topic today is how to trade breakouts in options. It's a very interesting topic, and who can be the best person for it other than CA Pratik? Hi, Pratik. Yes. Hello, guys. Myself, CA Pratik. So, along with Pratik, we have our co-host Manas, who is product manager with Paytm Money, and Mohini, again with Paytm Money, and myself, I'm a edu coach and trading expert with Paytm Money. So our speaker for the day, as I already introduced you, is CA Pratik. He is the founder of TradeStar Solutions. I welcome all of you, audience, for this enriching session. So, Pratik, my first question to you: how did you start your trading journey? So this is primarily to inspire all of us, like the people who love trading breakouts, including me. So, sir, basically, मेरा जो fan base है, या means follower base है, are belong. Hello, I think we are unable to hear. Pratik, if you can just unmute. Hello. Yes, now you're audible. Okay. So myself, CA Pratik, and most of you are knowing me as a TradeStar. So this conversation will be in English because मेरा follower base सर ज़्यादा गुजरात का ही है, तो हिंदी चलेगा. ज़्यादा बात हम हिंदी में ही करेंगे क्योंकि लोगों को समझ भी आएगा. So you all know कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन हूँ, तो in early 2011-12 I started my trading journey as a, क्या बोलते हैं कि एक छोटा सा पॉकेट मनी का खर्चा निकालने के लिए ड्यूरिंग आर्टिकलशिप टाइम आई स्टार्टेड सम ट्रेडिंग. एंड स्पेसिफिकली उस टाइम पे तो ऐसा था कि जो पॉकेट मनी से या मीन्स स्टाइपेंड से बचा हुआ थोड़ा पैसा था उसके ऊपर थोड़ा कुछ ना कुछ 200-500 रुपया कमाते थे. इन द एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड ट्रेडिंग. और उस टाइम पे ऐसा था कि आई थिंक 2000 मेरा एक्चुअली जर्नी मार्केट का चालू हुआ 2011 के एंड में से, कि जब मैंने पहली बार आईपीओ का नाम सुना. क्योंकि सीईओ ऑफिस में इट्स अ प्रैक्टिस के दे विल डू फंडिंग, और आईपीओ का पहले जो बड़ा एप्लीकेशन था उसके ऊपर जो पुस्तक जिसको बोलते हैं आज, तो एक्चुअली उस टाइम पे पता नहीं था कि ये होता क्या है. तो धीरे धीरे मेरे को पता चला. एंड इन द स्टार्ट ऑफ 2013 I opened my first demat account with Edelweiss. और उसी टाइम से मैं स्मॉल ट्रेड कर रहा हूँ. देन आफ्टर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फुल टाइम इन 2019. इन बिटवीन थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा पैसा जाता है, ऐसा चल रहा था. इन 2016-17 जब मेरा सीए का फाइनल चल रहा था, आई डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स मार्केट एंड make my intentions clear. So right now I am a full-time trader since 2019. और जो आप ये मेरे LOC देखते हो वो फिबोनाची सिस्टम मैंने 2019 में बनाया है, मीन्स 2018-19 somewhat. तो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट तो मीन्स एक क्या बोलते हैं स्लो मोशन में हुआ था, बट इट्स गोइंग गुड आफ्टर 2020. Yeah, wonderful journey. So,
like just you said that you started trading like since few years back, so you are mostly into options buying or options selling, like what is your primary? Basically, I am a momentum trader, so I am a option buyer because generally जिस हिसाब से अभी market position है, there are lots of option seller, but very few option buyers are there. So I am one of those who buys option with the strict stop loss and always wait for my stock to give me a entry, and that's we call LOC in my language. So I am a clear cut option buyer and not a seller. Okay, Pratik, good to know. So, what are your favorites, like index or stocks? Generally, what a trader want is one index and some of good stocks for his bread and butter. So basically, the person who is following me on Twitter knows that my 75 to 80% trades are on Nifty and Reliance. मोटा भाई जिसको बोलते हैं, तो generally these two are my favorite instrument for trading because they are liquid and we can easily punch larger quantity in this. And in commodities, my favorite is crude. There also liquidity is there, but only in futures. Options वहाँ पे थोड़ी liquidity अभी भी नहीं है because these are very new commodity options. Comparatively, ये तीन मेरे favorite instrument है, Nifty, Reliance and crude. Great. So आपका mostly like how do you select stocks? Like आपने Reliance का नाम लिया, but अगर मुझे let's say breakout trade करना है options में, तो मैं पहले stock choose करूंगा. Nifty तो it's okay. Nifty, Bank Nifty, it's any which ways we are doing it all the time. But stocks में अगर करना है, how do you select stocks? तो आप खाली large caps में आपका कुछ rule है कि खाली large caps में ही करेंगे, Nifty 550 में करेंगे, या how do you select them? या कोई scanner लगा के आप लोग करते हैं, आप select करते हो? जनरली ऐसा है सर कि मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे को लिक्विडिटी चाहिए, तो जनरली जो टॉप 10-15 स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी ऑप्शंस में ज़्यादा होती है, तो कंपैरेटिवली एक वॉच लिस्ट मेरा फिक्स है 10-12 स्टॉक का. फॉर एन एग्जांपल उसके अंदर रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा मोटर है, मारुति है, एमएनएम है, लार्सन है और कुछ एक दो और स्टॉक है. तो वो एक वॉच लिस्ट फिक्स होता है कि इन 12 में तो मेरे को ट्रेड करना ही है. हाँ, इसके अलावा मेरे को ट्रेड कब करना है, दैट्स योर क्वेश्चन. तो उसको मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ? फॉर एन एग्जांपल मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप एफएनओ में से मेरी फेवरेट है मैकडोवेल, एलटीटीएस. तो उन सब में आई विल वेट फॉर आइदर डेली ब्रेकआउट और आवरली ब्रेकआउट. तो जब भी उसमें मोमेंटम आता है तो आई विल एंटर ऑन द बेसिस ऑफ आवरली ब्रेकआउट. और ये जो एंट्री होती है, फॉर एन एग्जांपल अभी रिसेंट का ही एग्जांपल ले तो अभी मानो कि मिड कैप एफएनओ में हाँ भारत इलेक्ट्रिक ने आज ब्रेकआउट दिया है 241 पे. इट्स अ प्री डिटरमाइंड एंट्री लेवल और स्टॉक इंट्राडे में भी 3-4% मीन्स उसके बाद भी चला है. तो दैट्स अ प्री डिटरमाइंड एंट्री पॉइंट विच इज ऑलरेडी सेट इन द सिस्टम बिफोर द डे स्टार्ट्स. तो स्टॉक सिलेक्शन जनरली ये 12 स्टॉक में तो ऑलवेज वॉच लिस्ट में होते ही हैं. अदर देन दैट इट डिपेंड्स ऑन अर्लियर डेज वॉच लिस्ट और उसके पहले मीन्स जो होमवर्क किया होता है और उसमें जो अलर्ट सेट होते हैं उसके हिसाब से ट्रेड लिया जाता है. एंड ऑल द लेवल्स आर प्री डिटरमाइंड. अगर मेरा लेवल हिट नहीं हो रहा है स्टॉक के अंदर देन आई विल नॉट एंटर इन दैट स्टॉक. That's great. Most of the stocks जो आपने बताया वो आपका एक तो निफ्टी टॉप 10-12 स्टॉक 20 heavyweights में भी है and many of them are even high beta stocks. I think उसमें momentum भी अच्छा मिलता है and it against the trend
नहीं जाता है. These stocks mostly move with the trend of the market. So market ऊपर तो ये भी ऊपर जाएगा. Yes, yes. So that's quite a nice way of selecting and keeping them fixed. But आपका कुछ scanners चलता है, like what kind of what kind of scanners you look at, like hourly first 10-15 को breakout आया कि नहीं, या previous day का high breakout दिया कि नहीं, 4 days का high, 2 days का high, कैसे breakouts का scanning आप कैसे करते हैं stocks के लिए? स्टॉक्स के लिए एक ऐसा है मानो कि जनरली द स्टॉक विच इज आउट परफॉर्मिंग एन इंडेक्स, जिसको बोलते हैं मार्केट में, मीन्स कोई स्टॉक अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसके अंदर है, तो वो कितने बजे देखोगे आप, मतलब ना वो मीन्स आपको मीन्स एंड ऑफ द डे मीन्स 1 या 2 दिन पहले पता ही होता है कि दिस इज रिलेटिव आउट परफॉर्मर, बिकॉज मार्केट अगर 2% की रेंज में और स्टॉक मीन्स गिविंग अ ब्रेकआउट, तो उसको सिर्फ आप अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे, एंड देन व्हेन द वॉल्यूम स्पॉट्स अप एट सम पॉइंट, तो उसके बाद वॉल्यूम स्क्रीनर में जब आए ड्यूरिंग द इंट्राडे, देन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन इट और इनिशिएट अ ट्रेड इन इट. तो जनरली इंट्राडे में एंट्री के लिए आई विल गो विथ द ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन. तो उसके लिए सिर्फ वॉल्यूम पे ही रिलाई करते हैं, अदर देन प्राइस एक्शन. मीन्स मेरा एंट्री प्राइस तो फिक्स ही है, बट आई नीड अ वॉल्यूम बिकॉज आई नीड अ मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए. So I always wait for these 3 tools to be in parallel line, and after that I took entry. Okay, okay. Okay. So like you said, like one of the stock select कर लेते हैं, फिर आप like you will be buying options, right? So उसमें multiple strikes रहते हैं, तो how do you decide on the strike? कौन सा कितने OTM के strike लेते हैं या फिर कौन सा लेते हैं आप? How do you decide which strike to trade on? Okay. Actually generally होता क्या है कि in the month start मैं तो generally 80% अभी ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ. जहाँ पे लिक्विडिटी है वहाँ पे कंपलसरी ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, और जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे आई मीन टेकिंग ट्रेड्स इन फ्यूचर. तो ऑप्शन का स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट होता है, तो जनरल केस में ऐसा है कि इफ वी आर स्टार्टिंग एट द मंथ, मानो कि कोई एक्सपायरी चालू हो रहा है, उसमें अगर मैं कोई स्ट्राइक में ट्रेड कर रहा हूँ तो वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी या थोड़ा फार होता है इन द फर्स्ट वीक. इन द सेकेंड एंड थर्ड वीक आई सिलेक्ट स्ट्राइक जनरली in the money, because then and then I got actual move, and in the last week I will trade in the deep in the money. So generally for an example, आज का ही example लेते हैं कि I want to long Larsen. तो initially in the money strike था 1620 because the stock is trading at discount in the futures. So I just go long in the 1620 option because we are at the second and third week, between second and third week. So generally second and third week में I will go in the money, and if the last week is there I will go with the deep in the money. So I actually get the entire move. And in the starting of the month, if the LTs move at 1614, then I go with a slightly out of the money, means 1660 or 1680 strike. Okay, so Pratik, ये जो आप पोजीशंस लेते हैं, you take them on the basis of underlying या फिर futures options के basis पे लेते हैं? जनरली थोड़ा OI डेटा भी देखते हैं, बट ट्रेडिशनली ऐसा है मैडम कि आई विल मोर रिलाई ऑन द प्राइस एक्शन, क्योंकि जो चीज आपको पता चलती है वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट से, OI में होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं है, बट आई रिलाई मोर ऑन द प्राइस एक्शन. एंड समटाइम्स OI में से मीन्स आपको वो पता चल जाता है कि पुट में वहां पे कहाँ पे राइटिंग है, कॉल पे वहां पे राइटिंग है, एंड इफ द they are moving their position, so you can long that. For an example, in the some stock market, आज का एग्जांपल 240 में बेल में कॉल राइटिंग था, एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड इट स्टार्टेड शिफ्टिंग और 230 पे पुट राइटिंग था, जस्ट कल का पोजीशन बता रहा हूँ. तो अगर 240 पे स्ट्राइक मूव हो रहा है तो ड्यूरिंग द डे जो डेटा चेंज होता है उसके हिसाब से इफ आई टेकन अ ट्रेड इन द बेल टुडे, तो आई विल गो विथ 240 C long. So that is based on the breakout actually happened in the
underlying, and strike is selecting in the money just because of the change of because they are shifting upwards towards 245 and 250. So generally, I took a OI as a just to confirm my tool. Otherwise, I will go with price action and my breakout number of system. ये आपने एक बहुत अच्छा हिंट्स दिया हम लोगों को, लाइक व्हेन इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड दैट टाइम कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करें, जिस स्ट्राइक में आपका मोटा मोटी जैसे इफ यू आर बुलिश ऑन द मार्केट तो जिस प्राइस में आपका पुट का हेवी राइटिंग है उसी स्ट्राइक का कॉल हम लोग ले सकते हैं, isn't it? That's what you shared, right? Yes. Like with the भेल का एग्जांपल. Similarly, अगर आज हम लोग देख रहे हैं कि let's say 16,200 का उधर कॉल राइटिंग काफी हेवी है निफ्टी में. I'm just translating in nifty terms. So वहां पे अगर 16,200 के कॉल में अगर हेवी राइटिंग है और हम लोग बेयरिश है मार्केट में और पुट लेना चाहते हैं तो 16,200 का पुट लेना चाहिए. नॉट एट द मनी, इट्स इन द मनी का डेफिनेशन में जिसमें काफी राइटिंग हो रहा है वो वाला लेना बेटर रहेगा. राइट? एम आई करेक्ट? यस. राइट. तो आप हाउ डू यू क्रिएट लेवल्स? आपका एंट्री और एग्जिट का लेवल्स कैसे क्रिएट करते हैं? आप ब्रेकआउट जो देखते हो वो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट देखते हो या आवरली ब्रेकआउट देखते हो? माने इनिशिएशन के लिए आई एम सेइंग हाउ डू यू क्रिएट द लेवल्स? या पाइवोट्स फिबोनाची देखते हो? यस, एक्चुअली आई यूज जो लोग मेरे को इतने टाइम से फॉलो करते दे नो एक्चुअली द एलओसी इज अ number which I use to take an entry and exit in the particular stock or instrument. तो जो ये LOC है, it based on some pivot on some combination of Fibonacci. तो जनरल केस में my entry level is always fixed कि मेरे को मीन्स 241 पे बेल लेना है तो मीन्स लेना ही है. there is no second thought. ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या? मीन्स एग्जाम्पल 236 का स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस ले जाएगा, मार थोड़ी डालेगा. तो these levels are already predetermined and based on FIBO. So always they are predetermined and they are always means set means sometime I set order on the basis of this also. So generally अगर कुछ भी हो रहा है तो ये जो levels है they should be in the system. और अगर मेरा लेवल नहीं आ रहा है तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ एंड आई वेट फॉर माई मोमेंटम. हाँ, कई बार ऐसा भी होता है मतलब कि ये लेवल आ जाता है बट इफ द वॉल्यूम इज नॉट देयर तो आई विल अबॉर्ट दैट ट्रेड. तो ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए मेरे को. प्राइस में भी मोमेंट चाहिए, ब्रेकआउट भी चाहिए एंड वॉल्यूम भी चाहिए. अगर ये तीनों आ रहा है और मेरा मीन्स लेवल विथ वॉल्यूम जा रहा है then I will go long, otherwise I will wait if it's a long trade. So what is the full form of LOC? अब जो बताए? It's like a line of control. Means LOC means LOC only. LOC only. So is it based on Fibonacci pivots or is it no based on classical pivots? No, levels? it's not based on anything. It's based on simple Fibonacci numbers, which Fibonacci numbers. हाँ, जिसके ऊपर मैंने सर एक पूरा सिस्टम मेरा बनाया हुआ है. दैट्स LOC की दुनिया. तो that is a very small method of selecting this number. So you don't actually buy exactly at breakout. So 100 रुपया का डे का हाई है, 100 के ऊपर गया बाई नहीं करोगे, आप वेट करोगे ब्रेकआउट के बाद LOC में वापस कब आएगा उसके बाद बाई करोगे. राइट? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है. फॉर एन एग्जांपल आज का एक और एग्जांपल लेते हैं कि आई वाज लॉन्ग इन टाटा मोटर डीवीआर कैश स्टॉक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा पॉइंट. मैं वेट कर रहा था 223 का. एक्चुअली द ब्रेकआउट पॉइंट 223 इज देयर बट अगर मैं लेट एंट्री लेता तो मेरा मींस ऑलमोस्ट 1.5% चला जाता एंट्री में. तो सो आई एंटर्ड एट 220 बिफोर द एक्चुअल ब्रेकआउट हैपेंस. सो आई वाज इन द 3-hour gain in the start of the trade and when everyone entered price will move but
you will not get that desired risk reward. तो जनरली इसमें ऐसा है कि नंबर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा पहले भी आ जाता है ब्रेकआउट का, या कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम ऑल्सो बाइंग इन द रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट ऑल्सो। ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट आते हैं वहां पे भी बाई करता हूँ, एंड द फर्दर ब्रेकआउट पॉइंट आई विल एड ऑन। तो फॉर एन एग्जांपल आज वाला एग्जांपल लेते हैं तो बेल में मींस एग्जांपल फर्स्टली आई एंटर्ड एट 236 एंड 241 आई डबल अप माय क्वांटिटी। तो इट इज एन कंफर्मेशन टू बाय अबाउट 241। तो इसमें दो चीज होती है कि 241 पे कई लोगों के ऑर्डर होंगे, बट 236 में जहाँ पे मैंने रिटेस्ट बाय लिया विद द स्टॉप ऑफ 232, वहां पे जनरली कोई बायर नहीं था। तो ये जो एलओसी नंबर होते हैं कभी कभी मीन्स ऐसा है कि बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, एंड समटाइम्स इट्स लेट बाय सम पॉइंट ऑफ मार्जिन। तो मीन्स कभी इनिशिएट ऑर्डर होते हैं, मतलब एग्जांपल कोई स्टॉक अगर राउंड फिगर पे ब्रेकआउट दे रहे हैं तो आई विल वेट फॉर सम मोमेंट, एंड इफ द स्टॉक इज गिविंग ब्रेकआउट इन बिटवीन नंबर्स, मीन्स एग्जांपल 250 पे ब्रेकआउट दे रहा है या एग्जिट 200 पे ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो आई विल वेट फॉर सम मोमेंट। बट इफ द स्टॉक इज गिविंग ब्रेकआउट एट random number 242 and 241, then I will go with it, then I will not wait. Okay. So I have a question for you, Pratik. So आपने अब जैसे स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए आपने बोला कि मंथ इफ इट इज द एक्सपायरी इज फार ऑफ, तो आप लाइक दूर के स्ट्राइक्स लेते हैं, एंड लाइक नियर आते हैं तो आप इन द मनी लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट भी एक फैक्टर है जो कंसिडर करते हैं लाइक स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए। तो डू यू सी ओपन इंटरेस्ट आल्सो, और लाइक हाउ डू यू एनालाइज ओआई Why डिफरेंट maybe? स्ट्राइक्स? Yes, that's I already answer कि जनरली ओपन इंटरेस्ट में हम देखते क्या है, मीन्स मैं तो बहुत वो लेमिन टाइप का ट्रेडर हूँ। तो मैं जनरली कोई भी स्टॉक में अगर एंट्री आ रहा है या मीन्स कोई भी स्टॉक मेरे स्क्रीनर पे आया हुआ है सर, तो मैं जनरली एक लेमिन की तरह एक ही चीज देखता हूँ कि भाई कॉल रेटिंग की तरह, पुट रेटिंग की तरह, ओके, एंड द सेकंड डे पुट इट ऑन वॉट लिस्ट। तो उसके बाद मीन्स वॉल्यूम एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है किस स्ट्राइक के अंदर, मानो कि इफ द पर्टिकुलर स्ट्राइक आर गेटिंग शिफ्टेड ऑन, तो देन आई विल initiate long or short basis on that. So volume activity during OI on particular strike also gives me entry during market. तो OI में सिर्फ मैं जनरली मैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक के OI के सिवा ज्यादा कुछ देखता नहीं हूँ, एंड इन some point of time I will rely on OI volume also. So generally two things I see in open interest. इन दोनों के अलावा is there any other indicators that you follow? Hello, yes. Like you mentioned, इन दोनों के अलावा are there any other indicators that you follow? जनरली मैं ट्रेडिंग के अंदर अदर इंडिकेटर्स में एक सुपर ट्रेंड को यूज करता हूँ विथ सम कॉम्बिनेशन, एक्चुअली इट्स ड्यूअल सुपर ट्रेंड। और इसके अलावा मीन्स कभी कभी क्रूड के अंदर मैं पिवट पॉइंट्स यूज करता हूँ। तो दिस आर द टू इंडिकेटर्स अदर देन फिबोनाची आई यूज इन द ट्रेडिंग। बाकी बेस्ट तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन ही है, उसके लिए तो कोई जनरली इंडिकेटर नहीं, इट्स नेकेड आई एंड एक्सपीरियंस इंडिकेटर। सो डायरेक्शनल इंडिकेटर आप ज्यादा यूज नहीं करते, तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक्चुअली सर ऐसा है कि मेरे हिसाब से है ना, इंडिकेटर है ना वो आपकी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। एग्जैक्टली जो चीज मीन्स ऐसा है कि इंडिकेटर आपको है ना सेकंड थॉट दे सकता है, प्राइस एक्शन आपको सेकंड थॉट नहीं देगा कभी। जनरल केस में ऐसा होता है कि इफ यू आर फॉलोइंग अ प्राइस एक्शन, तो कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर आर लेगार्ड, तो वो है ना आपको डिसीजन पॉइंट को है ना एक मोमेंट के लिए है ना वो क्या बोलते हैं आपको डाउट में डाल सकते हैं। तो जनरली मैं तो इंडिकेटर के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई नहीं करता। हाँ, मैं ट्रेलिंग के लिए और कुछ चीजों के लिए इंडिकेटर यूज करता हूँ। बाकी जनरली फॉर मी प्राइस एक्शन इज द बेस्ट इंडिकेटर, उसके अलावा कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती। राइट। So what is the time frame do you consider? Like आपका टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम का देखते हो?
इंट्राडे के लिए करने के लिए डू यू यूज लाइक 3 minutes 15 minutes और डू यू यूज आवरली और पोजिशनल के लिए व्हाट डू यू रिकमेंड? इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं, मानो कि इफ माई ट्रेड इज शॉर्ट टर्म, फॉर एन एग्जांपल आज मैंने अभी बोला कि आई वाज गॉन लॉन्ग इन टाटा मोटर डीवीआर, तो उसमें टाइम फ्रेम था सिर्फ 5 मिनट, तो उसको मीन्स आई जनरली पुट अ स्टॉप लॉस एंड जस्ट सी द प्राइस एक्शन, रेस्ट आफ्टर इट। अगर इंट्राडे है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज होता है। अगर मैंने कोई सौदा मीन्स आवरली ब्रेकआउट पे लिया है एंड आई टुक अ एंट्री फॉर आवरली ब्रेकआउट, तो उसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मॉनिटर करता हूँ। एंड इफ द ट्रेड इज टेकन ऑन बेसिस ऑफ डेली और वीकली ट्रेड, वीकली ब्रेकआउट, तो उसको वैसे देखता हूँ आवरली चार्ट में, उसके नीचे वाले चार्ट में जाने का ही नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर गॉन लॉन्ग फॉर 10-20% और वो 2-3% का इंट्राडे में मूव आता है, उसके कारण आप डर जाते हो। तो जनरली इफ द डेली और वीकली ब्रेकआउट है तो उसको मैं टाइम फ्रेम में देखता हूँ 1 आवर। अगर आवरली पे ब्रेकआउट लिया है तो उसको मैं देखता हूँ 15 मिनट में, एंड द इंट्राडे ट्रेड है तो उसको 5 मिनट में देखता हूँ, उसको ऊपर के टाइम फ्रेम में देखने का ही नहीं, बिकॉज 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, कभी कभी हम 3 मिनट में भी देख 3 minute is क्योंकि जिस तरीके का अभी वॉलेटिलिटी है, अभी पहले 5 मिनट पे जो मूव आता था वो अभी 3 मिनट में या 2 मिनट पे भी आ रहा है, तो टाइम फ्रेम इज रिड्यूसिंग, तो थोड़ा मीन्स थोड़ा चेंज हमको भी करना पड़ता है, बट 3 and 5 minutes फॉर इंट्राडे एंड larger time frames for positional trades or swings. right. So yeah, audience, if you have any questions for Pratik, you can bring me, Shankar, or Moini. We'll be happy to ask those questions to Pratik. So yeah, Pratik, I had one question. Ki, once you enter, so exit, like how do you define your exit? Like how do you have any target in mind, or like how what all levels, what all indicators or any levels do you decide to have the exit? जनरली ऐसा है कि जब भी मान लो कोई भी ट्रेड में मैं आता हूँ तो मेरा एक एंट्री लेवल फिक्स होता है, एंड आफ्टर दैट द 1.618 जिसको फिबोनाची लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक एक्सटेंशन होता है, दैट लेवल इज आल्सो फिक्स। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिड्यूस माय पोजीशन 75% और 100% रिस्पेक्ट टू द ट्रेड गोइंग ऑन। फॉर एन एग्जांपल, अगर ट्रेड में मोमेंटम है तो देन आई विल keep 20% with me, 25% with me. Generally, जो 1.618 है, that's also a system decided number. तो for an example, अगर मैंने 100 पे ट्रेड लिया है and if my stops is around 93, तो ऊपर का लेवल है 105 या 106 एग्जांपल जो भी आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, या मीन सिस्टम नंबर आ रहा है, अप टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल रिड्यूस माई 75% पोजिशंस दैट, और बाकी की जो 25% होती है उसको मैं ट्रेल करता हूँ इफ द इंस्ट्रूमेंट और स्टॉक इज फेवरेबल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है यहाँ पे, तो मीन्स आप जनरली ना स्विंग के मीन्स पहले टारगेट पे जाके स्टॉक मर जाता है, फिर रिटर्न आता है और चलता है। तो इस वाले मार्केट में ना मैं तो अभी ऐसा समझ रहा हूँ कि इंट्राडे में भी यू आर गेनिंग 1 आवर और 2 आवर वी शुड बुक, और पोजिशनल में तो प्री डिटरमाइंड नंबर है। मीन्स फॉर एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली आई ट्रेडेड इन स्टेट बैंक, तो उसमें हमारा कुछ एंट्री 465 था एंड माय टारगेट इज 488, तो आई विल लिक्विडेट 100% पोजीशन एट 488। एंड सेम विद बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे मैंने मीन्स एग्जांपल एग्जिट दिया है 111 पर, तो वी विल जस्ट लिक्विडेट समवॉट अराउंड 110 to 111। तो ये भी सिस्टम नंबर पहले से डिसाइड ही होता है। हाँ, अगर इन बिटवीन कुछ होता है तो ट्रेलिंग हिट होता है, बट ऑब्वियस। Pratik, how do you hedge your position? अभी मीन्स देखो, जो इंट्राडे पोजीशन है वहाँ पे अगर मेरे को ट्रेंड क्लियर है, एक्चुअली आई एम अ ट्रेंड फॉलोअर, तो आई विल नॉट हैज माय पोजीशन ड्यूरिंग इंट्राडे, क्योंकि उसके लिए स्टॉप लॉस है ही। तो ओवरनाइट पोजीशन को कैसे मैं हैज करता हूँ? फॉर एन एग्जांपल, इफ आई गॉन लॉन्ग इन
सम फ्यूचर्स, तो मैं उसके ऊपर की मीन्स एक स्ट्राइक जो है उसको बेच देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी है, तो सर ने जैसे बोला इफ आई हैड लॉन्ग इन निफ्टी फ्यूचर्स राइट नाउ, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने 15,950 का लिया है और अभी वी क्लोज समवॉट अराउंड 16,050, तो मैं 16,200 की मीन्स जो जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ की कॉल बेच दूंगा एज ए हेड। मीन्स कुछ मार्केट में हो जाए तो मेरा ये जो मीन्स 100 पॉइंट का गेन है, मीन्स मैं लॉस में ना आ जाऊं, तो ऊपर की स्ट्राइक की कॉल बेच दे। इन द स्टॉक समटाइम्स इफ द स्विंग इज मोर, मीन्स एग्जांपल मैं 5 to 6% के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, देन आई विल हेज वाया सम पुट्स इफ आई हैड टेकन अ फ्यूचर लॉन्ग। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाय किया है तो मैं पोजिशनल ट्रेड में उसके ऊपर मीन्स इसको बोलते हैं ना कॉल स्प्रेड होता है, वैसे करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, मीन्स अभी मैं एसबीआई का जो एग्जांपल दिया उसमें आई हैड गॉन लॉन्ग विद 460 कॉल एंड आई हैड शॉर्ट एट 490 सी। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि एक मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिट हो जाता है। तो मीन्स मेरे को जो 14 पॉइंट्स मिलने वाला था तो वो मीन्स 12 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, बट उसके लिए ना मैं सामने मीन्स जो कॉल शॉर्ट किया हूँ वहां पे मीन्स मैं इतना है जो कि मेरा पैसा इतना नहीं जाएगा। जो मीन्स मेरा 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो 7 का 8 हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जनरली देर इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी, मीन्स मेनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू हैज योर ट्रेड। तो अगर ऑप्शन बाई साइड पे है और पोजिशनल है तो मैं उसके ऊपर का मीन्स जहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका स्ट्राइक का सी बेच देता हूँ, और अगर फ्यूचर है तो उसके ऊपर का रेजिस्टेंस का सी बेचता हूँ, एंड वाइस वर्सा इन द शॉर्ट साइड। This is a very simple strategy which you shared, Pratik. ये strategy bulls call spread है. So generally if you're bullish on the market तो you use it. इसका सबसे बड़ा advantage क्या है? कॉल बाइंग अगर हम लोग करते हैं, जिन्हें कॉल या पुट बाइंग, ऑप्शंस बाइंग जब करते हैं, हमारे ऊपर एक बड़ा तलवार घूमता रहता है कि वो थीटा डी के। तो ये व्हेन यू राइट दिस, इसका इम्पैक्ट काफी हद तक एब्जॉर्ब हो जाता है, काफी हद तक। तो इट्स माने if you are going to hold it positionally, I think this is a very good strategy. और वैसे भी सर ऐसा है कि लोगों को है ना सिंपल करना नहीं है, बाकी यू कैन हैव 4 legs 8 legs, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजी, बट मैं तो मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मेरे को सीधा आ रहा है प्राइस एक्शन में ट्रेड तो ही कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगी। एंड जितना सिंपल है उतना डिसीजंस भी फास्ट होता है, और अब एग्जिट एंट्री भी जल्दी कर सकते हो। हाँ, और मीन्स ऐसा है कि वैसे भी अपनी लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये मीन्स ट्रेडिंग को क्यों कॉम्प्लिकेट बना है। Very true, very true. Manas, your questions? Yeah, Shankar, I have one question from the audience. Yes. So so he's asking, like, for a new trader like me, how can I build psychology? Like, sort of psychology. How many trades it may take to be strong mentally to gracefully accept loss and profit the same way? Yeah, one of our listener has asked. Can you repeat the question? Yeah, so like for a new trader like me, who is the listener, how can I build psychology? How many trades it may take to be strong mentally to gracefully accept loss and profit the same way? Means लोग कोई ओके, सो जनरली तो मीन्स एक न्यू कमर के लिए एक चीज होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलूँ ना, तो पहले है ना जनरली कोई भी ट्रेड्स में ना पहले सिर्फ डिलीवरी में ट्रेड करना चालू करो। पहले ना ट्रेड कैसे हो रहा है उसको समझो, और टाइम तो मीन्स आपको कितना टाइम लगता है ये तो आपकी मीन्स क्या बोलते हैं ट्रेडिंग स्टाइल और साइकोलॉजी मीन्स उसको डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। बिकॉज मानो कि इन शॉर्ट बोले तो आज हमने कुछ सीड को बोया है तो ट्री बनने में टाइम लगता है, पहले वो प्लांट बनता है और बाद में ट्री बनता है। तो इट प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, तो it will take at least 2 years to understand the market psychology and trade like guys who are
प्रो। तो जनरली एक चीज के अंदर है कि रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना सीखो ट्रेड के अंदर, और अपने मीन्स स्टार्टिंग फेज के अंदर पहले डिलीवरी में जाओ, एंड आफ्टर यू गॉट एज ऑन डिलीवरी देन कम अप इन द एफएनओ, बिकॉज एफएनओ इज लाइक आपका मीन्स 40-50% या 100% भी एक ट्रेड में वाइप स्वाइप हो सकता है, जैसे डिलीवरी में नहीं हो सकता है इफ यू आर प्रॉपर डूइंग विथ रिस्क मैनेजमेंट। तो स्टार्टिंग में तो मैं इतना बोलूंगा कि कोई भी अगर नया ट्रेडर आया है तो टाइम तो लगेगा भैया, बट पहले है ना एक सिंपल ट्रेडिंग करना सीखो। तो पहले तो आई थिंक डिलीवरी में ही जाना चाहिए, एंड देन आफ्टर कम इन एफएनओ। What you said rightfully is very true. पहले डिलीवरी में सीखो, 2 साल लगेगा मोटा मोटी। अरे पक्का होने में मुझे जो लगता है एक ट्रेडर को सच्ची पक्का होने है ना, he has to see at least 1 or 2 bear cycles. जब तक वो 1 या 2 बेयर साइकिल नहीं देखेगा तब तक वो ट्रेडिंग में पक्का नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली सर, ऐसा है कि मीन्स फॉर एग्जांपल अभी मैं तो अभी इतना नया हूँ तो मैंने सिर्फ 2020 ही देखा है, बट वो जो उस टाइम पे मैं जो लोगों को बोल रहा था ना कि अगर आपने 2020 का मंदी देख लिया ना, तो ये मीन्स ये कुछ ना कुछ 5-10% ऊपर नीचे होता है, या मीन्स अभी थोड़े दिन पहले ये रशिया यूक्रेन वाला हुआ था थोड़ा टाइम पहले, तो उससे हमको डर नहीं लगता है क्योंकि हमने वो एब्सोल्युटली लोअर साइकिल देखी है। और मेरे जो पहले वाले मीन्स सीनियर ट्रेडर है, तो उन लोगों ने तो मीन्स 2 या 3 साइकिल देखी हुई है, तो हम उनका लोग तो ने मीन्स 2008 में जो देखे थे, लाइक यू विल नॉट बिलीव प्रतीक, एक दिन में जब माल फूटता था मैंने एक दिन में मैंने पीपल्स मार्जिन यूज्ड टू जस्ट ब्लो अप। 2008 का जो देखा, मेरा जितने भी फ्रेंड्स है ट्रेडिंग फ्रेंड्स है, उसने 2020 में पैसा भयंकर बनाया क्योंकि वो लोगों ने 2008 का मंदी देखा था। सो वो एक्सपीरियंस बहुत कम है। बट फॉर अदर्स यू कैन ऑल्सो डू बैक टेस्टिंग। आपका स्ट्रेटेजी एक बार देखो कि 2008 में कैसा चला था, तो आप उतना झटका ले सकते हो कि नहीं। आई थिंक 2020 में अभी अपने पास तो करंट डेटा है, सो 2020 का बैक टेस्टिंग डेटा भी है। सर अभी मीन्स जितना कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, या मीन्स एज ए ट्विटर पे जितना डेटा अवेलेबल है, कुछ अच्छे हैंडल्स है, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था जब मीन्स 2008 का क्रैश हुआ। मीन्स एग्जैक्टली दैट टाइम व्हेन आई जॉइन मीन्स 2015-16 में मैं खुद ट्विटर पे है, तो ये मीन्स यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस आल्सो। एब्सोल्युटली। So talking about others' experience, so any final advice you would like to give our audience? एज अ ऑप्शन बायर एक चीज वेरी क्लियर बोलना चाहता हूँ कि जनरली मैं एक मीन्स मेरे को मेल्स भी आते हैं या डीएम भी आते हैं, एक चीज मैं कॉमन देख रहा हूँ ऑप्शन बायर में, व्हाई रिटेल आर फेल इन ऑप्शन बाइंग, मेनी रिटेलर्स आर फेल इन ऑप्शन बाइंग। एक है ना वो आउट ऑफ द मनी पे ना होप ट्रेड लेते हैं क्योंकि सस्ता है, वो नहीं मिलेगा, तो उसके कारण पैसा नहीं मिलता है। तो एक क्लियर कट एडवाइस है कि भाई इतना आउट ऑफ द मनी मत लो कि वो जिंदगी में कभी इन द मनी ना हो पाए। और मीन्स सस्ता है, 5,000 का ऑप्शन मिल रहा है, यू कैंट गेट मीन्स कभी कभी एक आध 2 बार लक से आ भी जाएगा, बट यू कैंट मेक अ कंसिस्टेंट मनी इन दैट दिस टाइप ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहली चीज ये है कि सस्ता ऑप्शन लेके है ना हीरो जीरो नहीं करने का, वो ओटीएम है ना होप ट्रेड ही है। तो पहले ये चीज को एक रिटेल ऑप्शन बाय को समझना चाहिए। और एक दूसरी चीज है कि मीन्स आजकल कई लोग ट्विटर पे ट्रेड खुलेआम डाल रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, किसी को देख के ना अपना पूरा कैपिटल या पूरा पैसा उस ट्रेड पे मत लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली ही हैज जस्ट गिवन हिज व्यू। तो आप उसके ऊपर भी मीन्स ब्लाइंड ट्रेड मारना भी मत करो, क्योंकि ऐसा भी मेरे को मेल मैसेज आते कि सर someone has tweeted this, I taken this trade, someone has tweeted this, I taken this trade। तो जो बोरोड कन्विक्शन है ना उसके ऊपर भी ऑप्शन ट्रेड लगाना छोड़ दो। तो एज अ रिटेल ऑप्शन बायर यू कैन ग्रो अप।
Otherwise, you can't. That's a final advice from my end. That's amazing, Pratik. Very nicely summarized. And most importantly, self-reliance से ज्यादा और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. सीखो, देखो, समझो, फिर अपना सौदा डालो. आई थिंक दिस इज वेरी राइटफुली यू सेड. लोगों का देख के नहीं डालो. लोगों का लॉस भी होता है. बहुत लोगों का बहुत लॉस होता है. वो लॉस को ही अपडेट नहीं करता. अभी 10 ट्रेड में 2 प्रॉफिट होगा, 1 लॉस होगा. लॉस वाला कोई सॉरी एक 10 ट्रेड में 2 प्रॉफिट होगा, वही अपलोड होता है. आई नो मेनी ऑफ माई ट्रेडिंग फ्रेंड्स जो लोग प्रॉफिट ट्रेड्स ही खाली डालते हैं, लॉस नहीं डालते. सो वो आपको वो देख के पूरा कन्विक्शन लगा के पैसा नहीं डालना चाहिए. सही बताया आपने प्रतीक भाई. So, thank you everyone for your time, and thank you Pratik for this amazing session. You helped us and explained so nicely and easily how to trade breakouts in options. I think it's a very interesting subject in itself. And dosto, before we end our day today, I'd like to share that investing on trading in stock market is subject to market risk. Please read all scheme related documents and offer documents carefully before investing. Analyze your personal risk appetite. Check out how much money you have, and based on a certain percentage of that only, you deploy on a track record proven strategy. And proven by whom? Proven by you. And that यही चीज आपको आगे लेके जाएगा ट्रेडिंग के लाइफ में. So thank you Pratik for your time. Thank you Manas, Mohini, Harsh, and all you lovely audience. Okay. Please follow us, and we will keep updating new strategies and levels for the markets. And follow us for more updates. And next week, once again, we'll have another Twitter Spaces for you on FNOP Charcha. Thank you. Have a great weekend ahead. All the best. And goodbye, guys, from my end. Jai Hind. Bye.